ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਤਲਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਫਤੋ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਫਤੋ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਲੇ ਟੁਰ ਪਵੇਗੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਟੋਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਦਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ, ਉੱਥੇ ਇਸਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਸਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ। 10 ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਾਨੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 15-16 ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਮਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੂਰਤ ਸਾਫ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖਾਲ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆਇਤ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਾਦ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਦ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਪੇ ਆਨੇ ਪਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਦਾ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿੱਕਦੇ ਸਨ ਪਿਆ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗਾ, ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਸਿਫਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜਰਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਉਹ ਹਾਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਲੁਲ ਫਸਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਇਦ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ नहीं किस तरह कायल कर लिया उन्हें, ये नहीं उन बीच उन्हें गल लिखी कि पहले मैंने उनके साथ इख्तलाफ किया कि जब उन्होंने ये कहा कि इसके मिसदाक सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहब है तो मैंने उनके साथ इख्तलाफ किया, लेकिन बाद में मेरा शरह सदर हुई तो उन्होंने मुझे कायल कर लिया कि इसके मिसदाक सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब है, और अब मेरा ये अकीदा है, मैंने अपना अकीदा बदल लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बशीर हकीम ਨੂਰਦੀਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ਹੀਜ਼ੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹੀ ਮੌਕਫ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। और आयना सदाकत दे विच भी आमर भाई मोटी सुर्खी दे नाल इस्मो अहमद की पेशगोई का मिसदाक लिख के 111 नंबर सफे दे उत्ते इन्हें मिर्जा बशीरुद्दीन ने उत्थे भी यही लिखा है कि इसके मिसदाक सिर्फ मिर्जा साहब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं, नाउज़ बिल्लाह, इनकार कर दिता। ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਡ ਲਾਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त है तो दो सेफ्टी सुनाओ जी की हाल चाल ने? ठीक ठाक। वो एमसी की कहंदा सी पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਕੀ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਲਾਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਇਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਿੰਦੂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੈਜ਼ 1 to 1 ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, मैं थले सिर्फ दफा लिखा करो ना जाया करो यार। मैं सिर्फ थले लिखा जेड़ा ना टिंडे ले लो। ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं मैं तो इंजे ने मुंह से मुंह दे उत्ते सदेना कदी कदी मैं वन्या ना बरात ते अगले दिन तेल ला ले, मैं आख्या वापसी दी तैयारी ते नहीं तेरी सिर ते वाल अगे कोई ना ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਥਰ ਥਰ ਥਲੀਓ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਓ ਯਾਰ कोई नहीं शोद्या कोई गल ही काई नहीं ज्यादा फिर ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੋਲ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। एक लड़की नहीं सरवा जिन्होंने हुण इस्लाम कबूल किया है वो कह रही है भी सन कल कह रहे मुरब्बी आध्यान भाई कोई मुसलमान माई दलाल नहीं है भाई साढ़े नाल कुरान ते हदीस दे उत्ते गल कर वने सक मैं वेनिया जिन्हां 2-4 हवाले मिर्जे साहब दे न उन्हां दे कोल ते ओदा सबूत मंगदे कुरान पाक विच भाई एदा सबूत सन दियो तो वो आदन के मुरब्बी या तो उन्हां गल ही कटने लग वेंदे ने ते या उन्हां चुक के थले मरेंदे ने। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇਗਾ, ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ। अस्सलाम वालेकुम अमदी साहब।
جی वालेकुम अस्सलाम। तुसी उठ गए हो? जी यार मलक भाई क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक ठाक है। जी जी। शराब पी के बंदे ने हमें आज 2 घंटे गालियां दी हैं आपके एक। और यार मुझे ना सुनाई ये बात, ये देखें ये टिकटॉक जो है ना। अच्छी डिबेट कराई अभी एमजी साहब ने एक हाँ बराड़ के जी हाँ। ऊपर। मलक साहब ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। चले इधर ਐਮਡੀ अभी ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ कराएं। ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। बुला लो जवाद साहब ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ, जी एमजी साहब को इधर बुला ले, शेयर कर दे किसको? जवाद को या कमालाते इस्लाम को। मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था उधर भी कि आपको भी, आपके पास भी यही टाइम है जो मेरे पास है। तकरीबन 3:05 हो गए होंगे आपके जी पास जी भी। हाँ जी। तो उधर भी यही बताया था कि अब सोने का टाइम है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप थोड़ा, मैं शिकवा सुन रहा था आपका इमरान साहब के बारे में या आपके बारे में मेरी तरफ से कि मैंने कोई गलत बात की है मलक साहब को। जी मैंने पूछा था ये नहीं कहा कि हमने, इमरान भाई हमने आपको क्या कह रहे थे, मैंने पूछा था तो मैं थोड़ी देर उधर बैठा हुआ था। हम ये नहीं कह रहे आपने गलत कहा है, हम ये कह रहे थे आपने इमरान को मना किया है कि बुरे कमेंट ना करो, हम ये कह रहे हैं। अपनों को नहीं किया ये कह रहे थे। हाँ जी, ये हाँ बिल्कुल अपनों को नहीं कहा, ये बाकी ठीक। मेरे अजीज मेरी बात सुनो, मलक साहब को मैंने ये कहा था कि अच्छी जुबान इस्तेमाल करें, इसमें कोई बुरी बात है? कोई मैंने कब कहा है? कोई नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपने बुरा कहा। भाई सुन तो लो मेरे अजीज, सुन लो। सिर्फ इतनी बात की थी। इन्होंने लिखा था मूसा के साथ टिंडे, समझे? मैंने इनको कहा था सिर्फ कि अच्छी जुबान इस्तेमाल करें। नहीं, इसमें वैसे बुराई तो नहीं, उसकी टिंड है वैसे एमडी साहब, ये तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। कैसर साहब बता दें या शेब राजा, शेब भाई, एमजे साहब के साथ ना किया करें, हर बंदे के साथ तो नहीं करना चाहिए। ये अच्छे आदमी हैं, इसमें ये नहीं है कि मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, इनकी पीठ पीछे भाई उनके साथ मजाक चलता रहता, पूछे। हाँ मजाक और बात है, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो दूसरे आप देखें वहां पर क्या कल ये आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, टोटली एग्री। अच्छा अब दूसरी बात सुने, ये आमिर रज़ी साहब ऊपर बैठे थे, मेरी तरफ से एक बंदे ने गलत बात की है, मैंने उसको म्यूट किया, आपको नहीं पता चला, लेकिन आप शिकवा ज़रूर करते हैं कि आप अपने बंदों को नहीं देखते, लेकिन मैंने उसको म्यूट कर दिया, साथ में उसको तनबीह भी कर दी कि गलत ज़ुबान मत इस्तेमाल करो। अब मैं तो यार इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन आपके किसी बंदे को सिवाय उसने कि कोई गलत बात ना की हो, म्यूट भी नहीं किया, सिर्फ कमेंट्स में कहा कि भाई थोड़ा अच्छा से बिहेव कर ले। इतनी बात तो मेरे ख्याल में आप भी बर्दाश्त कर लिया करें। बाकी वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने वहाँ पे ना एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप आपस में बैठ के बीन बजा रहे हैं, ठीक है? उस पर मैंने आपको कहा था यार ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। तो जैसे अब किसी बात की गहराई की तरफ किसी मजमून की गहराई की तरफ इशारा करना हो ना, तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम इस दरिया में या समुंदर में उतरेंगे तो गहराई में जाके पता लगता है बात का। तो अहमद साहब ने वो उस रंग में बात की थी आमिर नज़ीर साहब के बारे में, कोई तज़हीक का मेज़ बात की होती तो मैं ज़रूर उनको मना करता। आप ये गलत फहमी ना रखें मेरी तरफ से। और मना रहा बिल्कुल कोई नहीं है। ये छोटी मोटी कह भी रहा था कि अगर कोई छोटी मोटी कार भी दे ना यार, तनकीद जी जी नहीं वो आपके सामने इनको उधर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर इधर भी कर रहे हैं ना, मैं इसलिए मैंने कहा यार आप ज़रा क्लियर कर लें, ये बात ऐसे नहीं थी जैसे आप समझे। असल में बात आप ठीक कर रहे हैं, आमिर भाई भी ठीक कर रहे हैं। एमडी साहब देखे ना, कमालात साहब आपके लगते हैं, वो भाई भी हैं, एमडी भी हैं। जब मैं उनके बारे में कोई ऐसी हल्की बात करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, जब आमिर साहब के बारे में कोई ऐसी हल्की बात करेगा तो जाहिर बात है मुझे भी बुरा लगेगा, वो मेरे भाई हैं। पहले कहता आपको यही समझा रहा हूँ। नहीं आपको नहीं ना लगेगा क्योंकि आपका भाई कर रहा है ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपको हल्की नहीं लगेगी, लेकिन मुझे वो बात हल्की लगी ना आमिर साहब के बारे में, तो मैंने कह दिया। अब मेरे वो भाई हैं तो मैं तो कहूंगा ना कि भाई उनके बारे में ये बात हल्की है, कि अगर कोई बंदा उनके बारे में ऐसी कोई बात करेगा, बाकी आप बात करें, कोई मसला। आमिर नज़ीर साहब को अगर मैं कहूँ कि मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ आप उस पानी में उतरे और गहराई तक जाएं,
तो ये क्या तंजिया बात होगी? आमिर नज़ीर भाई आप बताएं, ये कोई तंजिया बात है? मैं यही आपको शुएब समझा रहा हूँ कि वो तंजिया होती तो मैं ज़रूर उनको रोकता। हमज़ा साहब असल में ये भी होता है कि कई दफ़ा जो हमारे अपनी ज़ात होती है ना, हम उसके लिए इतना सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन अपने भाइयों के लिए हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि यार हमारे भाई के बारे में कोई बंदा इस तरह की हल्की सी बात भी करे तो हमें बुरा लगता है। तो ये भी थोड़ा सा एक जज्बा होता है, इसको भी मद्देनजर रखें। उनकी गैर मौजूदगी में अगर तो आप वहाँ पे मौजूद होते, आप तो उस बात का जवाब खुद दे देते ना। अगर उन्होंने ऐसी कोई हल्की बात की आपके बारे में, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मुझे बुरा लगा कि अब आमिर भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक बंदा उनकी मतलब पीठ पीछे ऐसी बात कर रहा है, तो मुझे बुरा लगा। मैं कह रहा हूँ मुझे बुरा लगा। चलो नहीं, ठीक ऐसे है, ही अब उसकी अगर वजह आपको है। बुरा लगा तो अब मैं उस पर आपके साथ हमदर्दी करता हूँ। तो बहरहाल अगर गलत होती तो मैंने आपकी तारीफ की थी वहाँ पे कि आपने एक बहुत अच्छी ब्रॉड चलाई या बहुत अच्छा मैनेज किया। जी हो शुक्रिया सकता है बहुत यही बहुत। अल्फाज कोई इनके बारे में कहता ना, शोएब राजा के डायरेक्ट इनके बारे में कहता कि शोएब राजा आपको डुबकियां देनी थी पानी में गए, मतलब हो सकता है ये डाइजेस्ट कर नहीं लेते, ना रिस्पॉन्ड वो करते। गलत है। नहीं डुबकियों वाला गलत। अगर ऐसी कोई बात होती, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि कोई तंजिया बात होती तो मैं खुद नोटिस करता। नहीं, मैं वैसे एक ऐसी बात मफरूज़े थी के नहीं। तौर पर कह रहा हूँ हाँ जी कि कई हाँ दफ़ा जी। अपने भाइयों के लिए चलो हमारी ना जो उसको सेंसिटिविटी लेवल होता है ना पीछे थोड़ा। पीछे छोड़ देते हैं हम ऐसी बात। अच्छी बात यह है कि आपकी अच्छी गुफ्तगू हुई है और उम्मीद है कि आइंदा भी अच्छा देखो, फिर होने वाली है इस मौजू पर ना, वो जोया साहब ने अरेंज करनी है, बात हो रही है उनके साथ इसी वो मौजू पर मियाँ साहब के सैटरडे को पास मेरा ख्याल में होनी है ना। गालबन। हाँ, प्रोबेबली वहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये उन्होंने काफ़ी दिनों से वादा किया हुआ था, शायद 1.5-2 महीने से, तो वो अब अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। हमज़ा ठीक है। साहब असल में हमारा काम ही ये है कि हम गालम गलोच को रोकें, कम करें अपनी तरफ से भी और अपने रवैये में भी, और जो हमारे भाइयों के रवैयों में इस तरह का वो शिद्दत पाई जाती है उसकी भी मजम्मत करें। लेकिन ज़ाहिर है कि हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी में कोशिश करनी होती है, आपकी भी एक कैपेसिटी लिमिट है, मेरी भी एक लिमिट है। तो बात यह है कि एक मौक़िफ़ है, उसको हमें पहुँचाना है लोगों तक। भाई हमारी नज़र में ये है दुरुस्त, इनका ये मौक़िफ़ है। अगर कोई हम में से अपने मौक़िफ़ से भी मतलब है कि वो करता है, सरफ नज़र करता है जो उनका ओरिजिनल मौक़िफ़ है अपने अकाबरीन का या हमारे असलाफ का, अगर हम उससे भी सरफ नज़र करें तो वो भी पेश करना है। वो अगरचे थोड़ा तकलीफ दे होता है जब कोई बंदा कहता है कि आपके बुजुर्ग तो ये लिख कर गए हैं, आप तो गलत बात कर उनके खिलाफ करें, थोड़ा सा वो तकलीफ दे होता है, लेकिन वो भी पेश करना पड़ता है। तो यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बस लोगों के सामने दोनों मौके पर फैसला लोग खुद कर लें। अभी कल रात को जोया साहब ने इसी मौजू पर वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपके चौथे खलीफा साहब की वीडियो है। अगर आप फ्रेंड्स लिस्ट में है ना आपके वो जोया साहब, उनकी जाके टाइमलाइन पे वो वीडियो ज़रूर देखें आप। आपके चौथे खलीफा साहब ने इसी आयत पर बात करते हुए, हैदराबाद के कोई इंडिया का कोई शायद प्रोग्राम था, वहाँ कोई बंदा बात कर रहा था, उसको जवाब दे रहे थे। उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तरफ एक बात मंसूब की है, इससे अगली आयत जो है ना वयुदआ इलल इस्लाम, कि उनको इस्लाम की दावत दी जाएगी। वो कहते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब ने इससे इस्तदलाल किया है अपने लिए, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। वो बात सुने, मैंने पूछा है वहाँ कमेंट में उनसे पूछा है, जोया साहब ये जो बात आपके खलीफा साहब कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने कहा इससे इस्तदलाल किया है? कहते नहीं, वो सैटरडे को सारा आपकी बातों का जवाब दे दिया जाएगा। फिर मैं चुप करके मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ बेहतर यही है कि वो, क्योंकि अब डिबेट आपकी तय हो चुकी है। मैं ज़ाती तौर पे तो आज भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे था कि अब आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो गुफ्तगू हो जाए आप लोगों की। तो एक ओवरऑल अच्छा ही रहा मेरे ख्याल में। हाँ जी, अच्छी बात है। आपकी बहादुरी है, आपका ज़र्फ है कि आपने उसको रोक के रखा है। जो दीगर आते हैं वो डेमो की तरह लड़ने के लिए आते हैं, हमारे भी आते हैं, आपकी तरफ से भी आते हैं, उनको हॉक्स को आपने कंट्रोल करके रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, वो तला भाई आए थे, उनको बहरहाल फिर भी आपकी तरफ से ना तला भाई आए थे, उनको मौका ज़रूर दिया था बीच में बोलने का। अच्छा, जब आप नहीं थे उधर तो उनको अच्छा मैंने नहीं देखा। हाँ मौका दिया था। तो बहरहाल ठीक है, आप लोग करें गुफ्तगू, मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, मैं काफ़ी टाइम हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी। चलें, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार कोशिश करें कि हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये दलाइल ऐसे हैं कि इनसे
कोई बंदा भी सरफ नज़र कर नहीं सकता, इनको झुटला नहीं सकता। उनकी बातें इतनी कच्ची हैं और इतनी आपस में कंट्राडिक्टरी हैं कि उनके खुद अपने बंदों के जहन में सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब तक बात ही ना होगी तो वो कैसे दलाइल दोनों तरफ के सामने आएंगे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा मौक़िफ़ मजबूत है और उनका आपस में मतलब तजाद बयानी है? अगर हम गालियां देंगे एक दूसरे को, मैं कहता हूँ हमारी बराड़ पे तो आके कोई छोटा मोटा, मतलब ये आपके सामने टोनी साहब लगे ही रहते हैं ना, तो छोटी मोटी गाली भी दे जो तो मैं अवॉइड कर देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, हम होस्ट हैं, हमें खुले दिल का मुजाहरा करना है, कर लेने तो उनको, वो जो कुछ वो अपने गुस्से में कर रहे हैं। तो बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि ये बातें लोगों तक पहुंचे, ये दलाइल लोगों तक उनके अपने बंदे इस मौजू पर सवाल कर रहे हैं। और मैं आपको दावे से लिख कर देता हूं कि टिकटॉक पर हमारे आने से पहले इस्मो अहमद के ऊपर इस मौजू पर किसी ने कभी को गुफ्तगू ही नहीं की। इस्मो अहमद एक छुपा हुआ मौजू था, हाँ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कई दफ़ा बातें हुई हैं, टिकटॉक पर जब हम आए हैं पिछले साल जुलाई में, उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हुई। और उनके अपने बंदे, अब जब इनको पता चला है कि हमारा ये मौक़िफ़ है, खलीफा साहब ने ये लिखा हुआ है, मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हुआ है, हम आज ये कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उनके अपने बंदे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो तुम मौक़िफ़ पेश कर रहे हो ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है, ये कहाँ से ले आए हो मौक़िफ़ अपना, इसकी ज़रूरत है। अब ये गुफ्तगू नहीं होगी तो वो लोग कैसे कमेंट करेंगे इस तरह का? मैं आया आप बात मलक इमरान, मलक इमरान, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, अख ला के मैं उठ गया जी। ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨਾਦਰਾ ਸ਼ਾਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ। मैं मलक इमरान दे नाल करना है। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਦੋ ਸੇਫਟੀਆਂ ਤੇ? यार वो बंदे ने बड़ियां गालां कड्डियां ने यार, कसम मैनू उस टाइम दा जेड़ा ना ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। यार इन्नियां ਉਹ गालां ਤੁਹਾਨੂੰ कसम। ਪਹਿਲੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਭਾ ਆਇਆ, हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪ ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਾਲਮ ਗਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। यही सी और कौन थी? ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, लेकिन हाँ, ਸਾਨੂੰ हाँ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अभी आप सो जाए, अभी आप सो जाए, देखें आप बात ना करें, आप उतर जाए। ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾੜੇ ਵੀ ਮਲਕ ਤਲਤ ਆਪੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਆ ਛਾੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨੂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨਾ? ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਅੱਖ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਐਟਮ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ 8-9 ਦਫਾ ਨਸਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੇਜਣੀ ਮੈਂ। ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ,
ਡੀਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲਾਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ हाँ 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 ਉਹ वो ਅਕਸਰ आजकल ਕਿਤੇ जो है ना मीर लतीफ तो बाद उबर के सामने आ रहा है कि ਹਾਂ मेरी ਉਹੀ ਹੈ मर्जी ਅਗਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਪਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪੇ ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤੇ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਾ ਚੱਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਾਦੀ ਤੇ ਕਿ ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਦੀ ਤੁਮ ਰਾਜ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ मेरे वालदैन के घर कोई औलाद ना इस तरह मैं हाथ में ला ठहरा तो मिर्जा साहब फोत हो गए सन एक कोई पैंचर काफी इन्हां वास्ते। उस दिन मैं जदों ताहिर अमजद साहब नाल कोई 45 मिनट गल कीती है इस बंदे ने इसमो अहमद नाल एक बारी भी गल नहीं कीती ਇਹ ਵੀ ਬਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਗੜੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਚ ਅੱਗੋਂ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਇਹ ਰਾਏ ਖਰਲ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਾਏ ਸਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਤੇ। आ गए जी टाक मास्टर साहब आ गए। जी आपने उठाया तो मैं आ गया मगर मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। आज एक हल्की सी बात सुनी थी कि आमिर नज़ीर भाई का कोई मुनाजरा तय हुआ है, कब तय हुआ है, किस टाइम पे, और ये भी मुझे बता दें। वो तो आपको आमिर नज़ीर साहब ही बताएंगे। ये वाले दिन तय हुआ है आपके कोई माइंड टोस्टर जोया साहब हैं कोई उनकी ब्राड में आप आ रहे हैं मुनाजरा सुनने। टॉपिक मेरा ख्याल है टॉपिक आमिर भाई कंफर्म करेंगे मुझे शायद लगता है इस्मो अहमद पे बात होनी है वहाँ पे। इस्मुहु अहमद, असल में आमिर भाई जो है ना वो इसम पर जोर दे रहे हैं कि उसका नाम अहमद होगा। हाँ तो आयत में भी तो इसम ही है ना तो फिर इसम भी जोर देंगे ना इस्मुहु अहमद। नहीं मेरा मतलब है कि इसम होना चाहिए यानी कि नाम होना चाहिए, उसके मायने नहीं होने चाहिए ना आपका तो मतलब। नाम है ना वहाँ पे अहमद लिखा हुआ है ना नाम। हाँ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो अहमद नहीं था ना, प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। आपको किसने कहा है नहीं है? आप बता दें कि कैसे है। क्या आपको पीर अस्कानी साहब ने वो हदीस का रेफरेंस और हदीस नहीं थी पढ़ के सुनाई जिसमें वो लिखा हुआ था कि उनका नाम अहमद भी था? अहमद भी था। और क्या मिर्जा साहब की तहरीर आपके सामने नहीं पेश की गई कि जिसमें मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम है, दो इसम है, एक मोहम्मद और एक अहमद। हाँ लेकिन वो उस इसम को तारीफी नाम कहते हैं, जिस तरह मतलब के दोनों फिर मोहम्मद भी और अहमद भी तारीफी हैं क्योंकि मिर्जा साहब तो दोनों कह रहे हैं ना। ये तो है। हाँ जी अब क्या करना है? दोनों को फिर तारीफी बना दे। नहीं आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک یہ احمد کی آیت نہیں اتری کسی نے ان کو احمد کہہ کے پکارا ہو؟ دیکھیں اس بات سے وہ کیا کہتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی بھی جماعت یہ بات کرتی ہے کہ عدم ثبوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ اب قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے نام نہیں ہیں، صرف 25 کے لگ بھگ انبیاء کے نام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی انبیاء نہیں ہیں پھر۔ اب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں تو صاف لکھا ہوا ہے سورۃ صاف کے اندر کہ اسمہ احمد، ہم تو یہی مان رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے 5 نام ہیں، جس میں وہ محمد بھی کہہ رہے ہیں، ادکو احمد بھی کہہ رہے ہیں، عاقب بھی کہہ رہے ہیں، ماہی بھی کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا دلیل آپ کو دیں؟ اب آپ کہتے نہیں ہمیں تاریخ سے کوئی ثبوت دے، تو تاریخ سے بھی ثبوت ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں ہے، تاریخ سے 1400 سال میں کسی بھی مسلمانوں کے درمیان یہ کوئی کبھی یہ اس پہ اختلاف نہیں رہا کہ اسم و احمد کے مصداق کون ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں نے یہی کہا ہے کہ اس کے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نہیں آپ کے نام ہیں محمد بھی اور احمد بھی۔ مصداق ہونا اور نام ہونے میں فرق ہے نا۔ دیکھیں مصداق ہونے سے ہی تو مراد ہے نام ہونا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ٹاک ماسٹر صاحب اس چیز کے مصداق ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی ہے، تو اس لیے آپ مصداق ہیں نا۔ اب ایک نام ہے، مصداق نام نہیں ہوتا میرے بھائی۔ کیسے نہیں ہوتا؟ اسم و احمد لکھا ہوا ہے اس میں، نام کی ساتھ پیش گوئی ہے نا، ایسے تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے صرف پیش گوئی نام کے بغیر کی ہوئی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اپنے بعد ایک رسول کی پیش گوئی کر رہا ہوں جس کا نام ہے اسم و احمد، تو اس میں پھر اب جھگڑا کیا ہے؟ نہیں جھگڑا ہی تو ہے نا، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہم، تو ان کا نام صدیق تو نہیں ہے نا۔ وہ تو لقب ہے نا، یہ لقب نہیں ہے احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نام ہے، اسم ہے۔ میں یہی لقب کہہ اور رہا چیز ہوں ہوتی ہے، اسم اور چیز ہوتی ہے۔ اب لقب ہوتا ہے جیسے اسد اللہ، حضرت علی کا لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اب وہ ان کا نام نہیں ہے، اب لوگ ان کو اسد اللہ نہیں تھے کہتے، ان کو حضرت علی کے نام سے پکارے جاتے تھے وہ، لیکن یہ ساتھ میں لقب ہے۔ شاعر اپنے ساتھ تحلس لگا لیتے ہیں، نام ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ شاعری کے اندر تحلس یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اب آپ نے اپنی آئی ڈی کا نام ٹاک ماسٹر صاحب رکھا ہو، آپ کا نام ٹاک ماسٹر نہیں ہو سکتا، یا آپ نے اپنا لقب رکھا ہو یا تحلس رکھا ہو یا کچھ بھی اپنی آئی ڈی کا نام رکھا ہو، تو یہ نام تو آپ کا بھائی کچھ ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت سے پہلے کسی نے احمد لیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے یہ کہا تو مرزا صاحب نے وہ کہا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کہا، میں تو یہ جاننا چاہتا اچھا ہوں میں تو ٹھیک، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے بچپن سے لے کر ان کی دعوی نبوت تک کیا کسی نے ان کو احمد نام سے پکارا؟ بس یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے تاریخی حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں، تو جو بات قرآن اور کسی حدیث بھی میں آ چیز گئی سے ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے، یا جو بات تاریخ کے اندر آئی ہے وہ زیادہ اتھینٹک؟ مجھے بس یہ بتا دیں۔ دیکھیں، آپ مجھے قرآن اور حدیث سے تو بتا رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں جو اسمہ احمد ہے وہ، اور حدیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، وہ دونوں اس پر افیکٹ نہیں کرتے؟ جو میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا بچپن سے لے کے دعوی نبوت تک کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے احمد نام سے پکارا؟ میں اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں۔ معروف نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، وہ محمد ہی ہیں، اور سب اسی نام سے ان کو پکارتے تھے، میں لیکن یہ اس کا نہیں یہ کہہ رہا مطلب کہ نہیں ہے کہ معروف ان کا نام کیا ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معروف نام کیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی نے ان کو احمد کہہ کے پکارا، لکھا یا بولا؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، اگر پکارا ہوگا تو ہی آپ مانیں گے کہ یہ قرآن پاک میں جو اسم و احمد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ بنتا تو یہی ہے نا۔ مطلب اگر یہ نہیں ملتا تو آپ پھر یہ نہیں مانتے کہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا ہے؟ یہاں پہ اسم و نہیں احمد سے مراد کون ہے؟ میں مانتا ہوں، مگر تو مانتے ہیں تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے، جب آپ مانتے ہیں تو پھر یار کس بات بولنے کی کا بحث ہے؟ پورا دینا سہیب بھائی، جان کیوں چھڑا رہے ہیں؟ بولنے تو پورا دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ نام ذاتی نہیں تھا، یعنی دعوی نبوت تک ان کا یہ نام بالکل نہیں ملتا، تو اگر ان کو احمد کہا گیا ہے تو وہ ان کا تعریفی نام ہے۔
सिफाती नाम है, उनका असल नाम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। तो फिर मोहम्मद भी कहा गया है, तो फिर मोहम्मद भी तारीफी है। नहीं, मोहम्मद तो उनको बचपन से नाम दिया गया था ना, वो तो मतलब है दोहराया जाता है कि उनका नाम मोहम्मद था, नबूवत से पहले भी मोहम्मद अच्छा था। चले ठीक है। लेकिन अब नबूवत से पहले उनका नाम अहमद नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, फिर ये जो इसमें जो इस सूरत के अंदर जो इस्मो अहमद की पेश गोई है, ये फिर कौन है? इसमोह अहमद की पेशगोई कौन सी है? अभी पेशगोई कौन सी है? वो एक रसूल की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाद आने वाले एक रसूल की पेशगोई कर रहे हैं और उसका लिख रहे हैं कि इस्मो सिफाती नाम अहमद। से कर रहे हैं, सिफाती नाम से कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन कौन है वो शख्स, कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा और कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि इसके अलावा कोई और है। तागमा साहब, आप बात थोड़ी सी ना वो कंफ्यूज हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने इतना चले आप, मैं आपको ये जोर जबरदस्ती से मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा। आपका वो आपका मानना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं इसको जाती नहीं लेता, सिफाती लेता हूँ, ठीक है, आपने ले लिया। अब ये बताएं इससे इसके मिसदाक कौन है? तो आपने ये कहा कि इसके मिसदाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ यही जी, कहा ना हाँ आपने? जी, तो हाँ अब मैं जी, ये हाँ जी। पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई और हो सकता है? हो सकता है। कैसे? भाई देखें, अहमद का जो मतलब है वो मतलब मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। मतलब इस आयत में फिर आप ये कह रहे हैं कि पीछे तो एक रसूल लिखा हुआ है, वाहिद का सीगा, लेकिन नहीं नहीं जब नहीं 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 नहीं, अब आप बात नहीं ना, अब बात करने देना, बात करने दे, सुन ले। ओके। हजरत ईसा जब एक पेशगोई कर रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ है मुबश्शिरुम बे रसूल, एक रसूल की खुशखबरी, एक रसूल की बिशारत, इस्मुहु अहमद। अब आपने मान लिया वो सफाती हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मैंने आपसे पूछा इससे कोई और भी मुराद है, तो आप कह रहे हैं हाँ हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं तो वाहिद का उससे सीगा नहीं है, नहीं एक नहीं रसूल। नहीं। जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है उससे उसने उन्होंने तो एक की पेशगोई की है, दो की नहीं की। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, एक ही की है, तो फिर नाम एक ही है ना, सिफाती हो या जाती हो, जो आप भी जो ले लें, है तो एक ही है ना। बिल्कुल और एक है फिर। वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना, और कोई हाँ, भी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब हम मुत्तफिक हो गए हैं कि ये एक ही है। अब अगर कोई बंदा ये कहे नहीं इसके अलावा भी कोई है और कोई शख्स है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब बताएं। उसके बारे में मैं क्यों ना आपको जो क्या कहते हैं, मैं अभी उनका नाम कैसे लूं, जिनमें जो इमाम बाकिर जो है उनकी तहरीर ना दिखा दूं कोई? हाँ हाँ दिखाएं, मैं आपकी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, दिखाएं। नहीं, स्क्रीन बड़ी ना करें क्योंकि मैं आपको तो कैसे दिखाएंगे फिर आप? पढ़ के सुना सकता हूँ ना। चले किताब का हवाला या कोई ऐसा हवाला दे, फिर मैं आपको भी एक हवाला देता हूँ। तो वो ऐसा है कि वो मुझे ढूंढना भी पड़ेगा। जब ढूंढ लेंगे, वैसे सुना दें आप, क्या बात क्या करना चाह रहे नहीं, मैं आपको मुझे मिल गया है, मैं आपको वही पढ़ के सुना रहा हूँ। हैं? जी जी, पढ़ के सुनाएं। हाँ जी, जब मेहदी आएगा तो ये ऐलान करेगा कि ए लोगो, अगर तुम में से कोई इब्राहिम और इस्माइल को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही इब्राहिम और इस्माइल हूँ। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हज़रत इमाम बाकर जो हैं वो 51 हिजरी ता 114 हिजरी तक थे। यानी इमाम की जो दावा हुआ है वो तो बहुत बाद की बात है, यानी कि ये बहुत पहले लिखा गया है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इब्राहिम और इस्माइल को देखना चाहता तो मैं इब्राहिम और इस्माइल हूँ, और अगर तुमसे कोई मूसा और यूशा को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मूसा और यूशा हूँ, और अगर तुम में से कोई ईसा और शमून को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ईसा और शमून मैं ही हूँ, और अगर तुम में से कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख और अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत अली को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूँ। बहारुल अनवार जिल्द नंबर फला फला। तो ये बहुत पहले की ये बात उन्होंने की है। अब वो रासिकुल अकीदा थे या नहीं थे, दोनों सूरतों में आज के दावे के साथ उनका कोई तल्लक नहीं है। 1400 बरस गुजर 1400 के बाद
सदियां तो नहीं, 1.5 सदी गुजरने के बाद। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर कोई मोहम्मद को देखना चाहे तो वो मुझे देख ले, ये तमसीली कलाम होता है। अगर मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को अहमद कहा है तो या अहमद का मिसदाक कहा है तो उसमें गलती क्या है? जी की है उसका ये लुब्बे लुबाब यही है कि आप उस तरफ चल पड़े हैं जिस तरफ आप पहले नहीं थे जा रहे। पहले आपने कहा था इसका मिसदाक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब आप मैं चल भी पड़े हैं कि हाँ नहीं सुन लेना, बात सुन ले। अब आप दूसरी तरफ आपने यू टर्न मारा है और आपने कहा है कि आपने इमाम बाकर का जो भी कौल सुनाया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो वो ना किताब पढ़ी है और ना ही मैं उससे मुतफिक हूँ जो आपने बात की है। मैं तो खालिस्तन कुरान और हदीस का मानने वाला हूँ। अच्छा, अगर आपने ये बात करके अब इस तरफ चल पड़े हैं कि अगर मिर्जा साहब ने भी इसको अपने लिए मिसदाक कहा है तो वो उन्होंने एक तमसीली कलाम किया है, इस्तिआरे के रंग में कहा है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, ठीक वो है, तो सिर्फ अहमद तो नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा कि मैं मोहम्मद का ही कहा नहीं दूसरा। वो बाकी को छोड़ दे, हम सिर्फ इस्मो अहमद पे बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ स्टिक करना है हमने इस्मो अहमद के साथ, क्योंकि बाकी हाँ फिर हाँ जो भी कहा है वो उसको छोड़ दें। हाँ वो तो मुझे पता है मिर्जा साहब के और भी बहुत सारे दावा जाते हैं कि मैं इब्राहिम भी हूँ, नूह भी हूँ, जो भी है वो उसको छोड़ दें अभी फिलहाल। अभी हम कर रहे हैं इस्मो अहमद पे बात। अब आप पहले इस बात पे एग्री हुए थे मेरे साथ कि ये बेशक आपने ये मान लिया था कि एक सफाती नाम है, लेकिन अब पीछे भी एक एग्री रसूल की पेश जी, अब भी एग्री हूँ कि वो रसूल करीम लेकिन ये सल्लल्लाहु अलैहि बीच में भी आपने ये कह दिया कि नहीं अगर मिर्जा साहब ने इस्तेमाल किया अपने लिए तो ये इस्तिआरे के रंग में है, ये एक एक्स्ट्रा बात कर दिया आपने। वसल्लम थोड़ा अच्छा, अब सोचने मैं की आपसे पूछने लगा था, मैंने ये सवाल किया था कि अगर कोई बंदा इसको ये कहे कि इस पेशगोई का मिसदाक में जो एक रसूल है वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, इसके अलावा एक और रसूल भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो आपने नहीं नहीं बताया। नहीं 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 ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूँ कि इसके मिसदाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि एक नबी का जिक्र किया गया है तो वो एक ही होगा। ठीक हो गया। अब जो मिर्जा साहब का दावा है हम्म, वो जिल्ली तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का दावा है उनका, अच्छा और ठीक। जाहिर है कि फिर वो अहमद उनका अगर नाम है तो वो अहमद उनका भी फिर नाम है, लेकिन ये इस्तिआरे के रंग में है, ये हकीकत में नहीं है। जी अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस्मो अहमद का मिसदाक अगर मिर्जा साहब ने खुद को कहा है तो उन्होंने इसको जिल्ली या बरूजी तौर पे कहा है, आप ये कह रहे हैं, हाँ, इसी रंग में कहा है। हकीकी तौर पे नहीं कहा, ये कह रहे हैं राइट? नहीं, हकीकी तौर पर तो हो नहीं सकता ना, लेकिन वैसे उनका नाम क्योंकि अहमद है, हकीकी वो तौर पे लगा तो हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके मिसदाक यही है ना। अब है। हाँ इसको जी थोड़ा सा बिल्कुल। और चेंज कर लेते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अव्वल मिसदाक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इसके जो दूसरे मिसदाक हैं वो मिर्जा साहब भी हैं, हाँ मसीली जी रंग में, तमसीली रंग में, हाँ जी हाँ जिल्ली जी, बरूजी गैर हकीकी जो भी वो बीच में डाल के सारा कुछ। ठीक समझे, ठीक अच्छा, समझे। अब हम एक स्टेप और आगे जाने लगे हैं। अब आपने इसको तो जस्टिफाई कर दिया, अब मुझे ये बताएं अगर कोई बंदा ये कहे कि इसके मिसदाक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं इस आयत में, इससे मुराद सिर्फ मिर्जा साहब है, फिर अब उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे मैं इख्तलाफ करूंगा। अच्छा, उससे आप इख्तलाफ करेंगे कि अगर कोई बंदा ये कहे कि इस आयत के मिसदाक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहब मुराद है, तो आप भाई कह रहे हैं कि मैं उससे इख्तलाफ ये करूंगा। ये बात कोई नहीं कर सकता, इसका कोई सियाको सबाक जरूर होगा। अच्छा, कोई सियाको सबाक भी बीच में डाल दी है? अच्छा, क्या सियाको सबाक हो सकता है? देखिए क्या जो सियाको बात सबाक मैंने बताएं आपको मुझे। की, नहीं, एक मिनट सोहेब राजा भाई, ये जी जो जी जी। आपने आखिरी सवाल किया है, इससे पहले तक की बात से आप मुतफिक हैं जो मैंने कही? हाँ, क्योंकि वो आपका अकीदा है ना, अब मैं आपके अकीदे को क्या कह सकता हूँ, मैं चेंज तो नहीं कर, नहीं मैं तो नहीं समझा नहीं सकता नहीं हूँ ना। नहीं नहीं, आप मैं मेरे मुतफिक अकीदे इसलिए को नहीं, मैं मुतफिक नहीं हूँ, ये मैंने कभी नहीं कहा मैं आपसे मुतफिक हूँ। मैंने आपको बस ये कहा है कि ये आपका अकीदा है, आपको मुबारक हो, क्योंकि पहले आप इस अकीदे पे खड़े थे कि इससे मुराद सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर आपसे उससे एक स्टेप आगे चले हट के थोड़ा सा, तो आपने कह दिया नहीं अगर मिर्जा साहब भी हूं तो उसमें जिल्ली बरूजी तमसीली कलाम है, क्योंकि जैसे आपने वो कोई कॉल भी पेश किया, तब भी मैंने मैं तो आपको कहा ये ठीक कह है ये रहा आपका हूँ, मानना है, मैं क्या कह सकता मैं हूँ, तो मेरा तो ये मान चले, मेरा अकीदा सुन ले। मेरा अकीदा मैं ये है कि 1400 साल में मुसलमानों का यही अकीदा रहा है कि इस आयत में इस्मो अहमद में जो एक रसूल की पेशगोई की है वो फकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, इसके अलावा और कोई इससे भी मैं नहीं, भी ये मेरा मुतफिक अकीदा हूँ,
इससे मैं भी मुत्तफिक हूँ। ना इसमें कोई जिल्ली है, ना कोई इसमें बरूजी है, ना इसमें कोई तमसीली है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें एक ही वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है, मुबशिर बे रसूल, एक वाहिद रसूल का यहाँ पे जिक्र हुआ, और वो एक ही ज़ात है और फ़कत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो आप यहाँ इसमें पर किसी को हजरत तमसीली इमाम तौर पे शामिल बाकर करें। एक मिनट, यहाँ पर हजरत इमाम बाकर के कॉल को आप रद्द करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? और मेरे सामने वो कॉल है ही नहीं, ना मैंने पढ़ा है, ना मुझे पता है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं कैसे आपको राय दे दूं? वो आपने पढ़ा है, आप जाने। मेरे सामने जब वो पेश करेंगे, आप सामने किताब रखेंगे और मुझे अगर बताएंगे। अगर अगर मैं खुद ही जानूं, मैं खुद ही देखूं, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अमीरुल मोमिनीन को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें हूं। मेरी और बात सुने, अब आप मेरी टॉपिक बात को सुन ले, दूसरी पूरी तरफ बात लेके सुन जा ले, रहे हैं टाग मास्टर साहब। पूरी बात सुन लें। जी आपने करें कहा जी। कि आप ही देखें और आप ही उसको देखें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। एक बंदा अगर आप अपने आप को ये कहता है कि अगर तुमने मोहम्मद को देखना है तो मुझे देख लो, तो वो अहमद कैसे नहीं कह सकता अपने आप को? ये बताएं मुझे, मेरी असूली मेरी बात बात करें। सुन ले, चले मेरी बात सुने, इससे आगे भी और बात को आगे बढ़ाते हैं, डेड लॉक नहीं करना, हमने आगे चलना है। अगर आप कहते हैं कि इमाम बाकर ने कह दिया तमसीली तौर पे, तो मिर्जा साहब ने भी कह दिया, तो आपकी बात जस्टिफाई होगी। हम इससे आगे चलते हैं, इसको छोड़ें अभी, हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने ये सवाल किया था कि अगर कोई ये कहे कि इस आयत के मिसदाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं, फकत मिर्जा साहब ही हैं, तो फिर आपने कहा मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। क्या ये आपने कहा? हाँ जी। ठीक है, अब मैं आपके सामने तहरीर। अगर ये स्टेट में इसी तरह ही है जैसे आप कह रहे हैं, तो और कैसे मैंने आपको मतलब कहना है स्ट्रेट वे? आप ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, शख्स, अगर एक सुन मिनट लेना, एक मिनट अगर एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स ये कहे कि इसके मुस्ताक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं, जी जी तो मैं उससे जी, इख्तलाफ करूंगा। चाहे वो कितना भी बड़ा कद का बंदा हो, कुछ ना भी हो। कोई भी हो, आप हो या अमीर नजीर भी हो। अच्छा, आज नहीं का नहीं, हमारी क्या औकात है आपके सामने? अगर वो मतलब वो मैं हो ये जिसके कह रहा बारे हूँ में, सुन लेना, किसी की भी सुन ये तो लेना, औकात नहीं इजाजत। है सोहेब भाई, किसी शख्स की भी ये औकात नहीं है कि वो ये कहे कि इसके अहमद के मिसदाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। किसी की भी ये ठीक है, औकात नहीं है। अगर कोई कहे तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले मुझे वो दिखाए। ये तो नहीं कि मैं फर्जी तौर पर ये कह लूँ कि कोई कह रहा है, कोई भी नहीं कह अच्छा, रहा। पहले दिखा देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, दिखाने में तो कोई बात इतनी बड़ी है ही नहीं। अच्छा जी, ओए होए, कितने रोले पै गए ने। टाक मास्टर साहब ध्यान रखना, ये शोएब राजा साहब आपको बात नहीं करने देंगे इधर, कौन से शेब राजा साहब? जिनसे आप बात कर रहे हैं अभी। तो अभी तक तो उन्होंने बात करने दी है, मुझे रोका नहीं है। बहुत मुश्किल से आपकी बात करने देंगे, वो अपनी बात ही करी जाते हैं। नहीं, वो बात मैं सुन रहा हूँ, वो कर रहे, वो भी सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं है। पानी में मदानी फेरी जाएंगे वो। अभी देखना मैं आपसे बात कितनी देर में खत्म करूंगा। हाँ, ये जो कुरान जी, पाक ये में मेरी ना स्क्रीन नहीं बड़ी कर दे। नहीं करने देंगे ये बात। नहीं सोहेब राजा भी आपकी निकी स्क्रीन करके बड़ी वाला ते हो- रखन दियो ना। एक मिनट सोहेब भाई, देखने आपका ताग मास्टर साहब पैरां ते भार पांदे ने, लत्तां ते भार पांदे ने या नहीं, वो तो या थरथली इनकार कर मचाते ने? देंगे, वो तो खलीफा मेरी के। बात सुने सोहेब राजा भाई, आप ये जी मुझे ताग कटिंग दे रहे हैं, मुझे कटिंग नहीं चाहिए। नहीं, ये तजहीजुल अज़ान नवंबर 1914 का आपको दे रहा हूँ हवाला, आप जाके चेक कर। तजहीज़ुल-ए-ज़ाम को मैंने क्या करना है? आप मिर्जा साहब की तहरीर दें कोई यार। ओ मिर्जा साहब कैसे कह सकते हैं यार? मैंने कब कहा है मिर्जा साहब कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर कोई शख्स ऐसा कहे कि इसके मिसदाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है बल्कि मिर्जा साहब हैं, तो आपने कहा मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। अब मिर्जा साहब बीच में किधर से आ गए? अभी तो आपने ये बताया ही नहीं है कि मैंने तो मिर्जा साहब का नाम भी नहीं लिया। मैंने देखें, मैं बता रहा हूँ मिर्जा साहब का ये कीदा था कि ये जो दो नाम है ना, इस्मो अहमद और मोहम्मद, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। हम तो पहले ही आपको खुल खुला के कह रहे हैं, उन्होंने अपने लिए इसको इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रुकें। अच्छा चलो जी, रुक गए। यहाँ पे रुकें। जब आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि इसके मुस्ताक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद के भी और अहमद के भी, फिर अच्छा उनका नबूवत का दावा भी है,
जिनका आप जिक्र कर मैं जिक्र कर रहा ठीक हूँ, ठीक उसके है। बाद कोई भी शख्स अगर उनकी इस बात को रद्द करता है तो वो तो वैसे ही मलून करार हो गया। भाई आप उसको क्या कहना चाहते अल्लाह ओए मलक साहब के सुने जी की राम क्या दे उन्हें क्या हैं? मलून सिर्फ एक नहीं, नहीं सिर्फ एक बाय नहीं। जी मनाजरा हत्ता वमा लेना इल्लल बलाग लो जिन्ना सुनता पढ़नी ना सुनता पढ़ लो। अच्छा, अब सुहेब भाई हुआ क्या है मुझे जरा बताएं, कौन सा तो ऐसा। आपको पता नहीं आपने नहीं, क्या बात कर दी है। मेरी बात सुने, मैंने जो भी बात की है, आपने ये कहा है, मैं दोहरा देता हूँ, आपने ये कहा है कि मिर्जा मुझे अपनी साहब कह बात रहे का हैं पता है, मेरी कि बात सुन लें, मेरी जो बात दो सुन लें। नाम है ना वो इस्मो अहमद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मोहम्मद भी। अगर इसके अलावा कोई ये कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा भी है और जो बात मिर्जा साहब कह रहे हैं अगर उसके कोई खिलाफ जाएगा वो मलून शख्स है, आपने ये कहा है। लाजमी बात, अगर अगर उसके खिलाफ जाता है तो वही ना, मिर्जा साहब अगर कहें कि इस्मो अहमद के मिसदाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, लेकिन कोई उठ के ये कह दे कि नहीं इसके मिसदाक मिर्जा साहब हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो वो मलून शख्स है। आपने ठीक बात कर दी, आपकी बात को हमने मुझे जो ये है वो बताएं कि रिकॉर्ड भी कर मुझे लिया। ये बताएं, एक मिनट, मुझे ये बताएं कि असूली तौर पर मैंने कौन सी गलत बात की है। एक नबी की बात को रद्द करने वाला कौन हो सकता असूल है? के असूल के ऊपर जाए ना तो नहीं ताब करने मास्टर देंगे साहब, आपको बात, आपने बहुत नहीं अच्छी करने बात की। देंगे। असूल पे जाना है अगर तो असूल पे और जाए यार तो शुएब आपने रजा भाई, बात तो 110% उनकी बात की। कंप्लीट हो लेने दिया करो मेरे भाई, तुम बीच में से ट्रक करके काट देते हो। हाँ ना यार, ये एक प्रॉब्लम है मलिक साहब। नहीं ताब मास्टर मुकातिब साहब, आप साहब मेरी की तारीफ होती कर है। रहे, आप मेरी तारीफ कर रहे थे अभी। हाँ अच्छा, बात ये है मलिक साहब, देखें एक असूली बात है, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते हैं, कोई उनके खिलाफ यानी उनके अपोजिट बात करता है तो वो मलून ही होगा। इसी तरह हज़रत मसीह मौद को यानी मिर्ज़ा साहब को हम मानते हैं कि वो नबी हैं। अब अगर वो एक बात करते हैं जैसे कि ये कि रसूल के अहमद और मोहम्मद दोनों ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, तो कोई दूसरा शख्स जो है उठ के, कोई भी हो, खलीफा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, बड़ा चालाक हो, चतुर हो, बड़ा मशहूर हो, वो ये कह दे कि मैं मिर्ज़ा साहब के खिलाफ ये बात कर रहा हूँ, यानी उन्होंने जो कहा है उसके खिलाफ है, वो शख्स सही कैसे हो सकता है? और अगर मैंने उसको गलत कह दिया है तो यहाँ पर ये जो नारे मार रहे हैं सुहेब भाई, ये किस बात के नारे मार रहे हैं? जी शुक्र है भाई नहीं बोला है इस वाली बीच में, तो यार मेरा उन्होंने ना डिबेट चल रही है, मैं नहीं बोलांगा तो फिर कौन बोलेगा, मैं दसो पहले। 8 घंटे हो गए हैं, डिबेट नहीं चल रही, मैं डिबेट नहीं किया करता। मुनाजरा है। आपने मुझसे बात ये पूछी है कि बताएं असूलन मैंने कौन सी गलत बात की, तो मैंने ये कहा है कि असूल के ऊपर अगर आपने जाना है तो आपने बिल्कुल 110% करेक्ट बात की है। जैसे आपने मिसाल दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात करें तो अगर कोई उनका उम्मती या उनका मानने वाला उठ के उसके ऊपर अपनी बात रखे तो वो बिल्कुल मालूम है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। हमारा तो ये मानना है। इसी तरह अगर मिर्जा साहब का नबूवत का दावा है, आप उनको हकम रद्द मानते हैं, एक बात मिर्जा साहब अगर करेंगे तो कोई उठ के उनके मानने वाला मिर्जा साहब से आगे निकलने की कोशिश करेगा और उनको क्रॉस करके उनके ऊपर अपनी कोई बात रखेगा, तो वो आपने बिल्कुल ठीक बात की है असूल के ऊपर कि वो भी मालूम है, वो लानती इंसान है। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, इसमें तो कोई चलो दो राय नहीं है। चलो सुनता पढ़ लो, मुनाजरा खत्म हो गया। फिर आप नारे किस बात के लगा रहे हैं? इसीलिए लगाए हैं कि आपने हक की बात की है, आपके हक में नारे लगाए हैं मैंने कि आपने बहुत अच्छी बात की है। जी साजिद अहमद साहब सलाम अलैकुम। इतना है कि तुसी किन्नू रगड़ देता है। उन्हें पता है उन्होंने मुनाजरे कर दिया 5 साल हो गए ने। टाक मास्टर साहब ओ की हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक बिल्कुल। मैं क्या गुस्सा क्यों कर दी हो? कोई नबी किसी ने मनना है ना मनना है, गुस्सा करने की लोड़ है? वो अपनी कब्र पैसन, असी अपनी करना कब्र ऐसी गुस्सा जी ਤੁਹਾਨੂੰ की मैं जे सुहेब भाई, आखा दा गुलाम मोहम्मद भाई बंदा चंगा ते तुहान कोड़ क्यों चढ़दी है? गुलाम अहमद कौन है?
अच्छा, तो ज़ुहैब भाई इस पर बहस हो रही है आमिर नज़ीर भाई की, किसके साथ? वो तो आपने बताया था कुछ, चले ठीक है। तो वो अगर आमिर भाई आ जाएंगे तो आपको क्लियर बता देंगे। कोई उनकी जोया साहब है, उनके साथ चल रही है कोई अच्छा, डिबेट जोया होनी है। साहब, जोया जी। साहब, तो ये पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक कितने बजे है हफ्ते को? अब ये इतना तो नहीं मुझे पता है, जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। अभी आमिर भाई बता ही रहे थे, अभी भी थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथियों के साथ एक ब्रॉड के ऊपर एमजी साहब ने डिबेट करवाई है। कमालाते इस्लाम का नाम सुना हो आपने, या जवाद साहब का? हाँ जी, जवाद साहब का भी नाम सुना हुआ है, तो कमालात इस्लाम भी सुना हुआ है। हाँ, उनके उनके साथ डिबेट हुई थी, और लेकिन वो असल में डेड लॉक हो गया था इस बात के ऊपर कि वो कह रहे थे ये सफाती नाम है। आमिर भाई कहते हैं कि आयत के अंदर तो इस्मो लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नाम है। अगर तो लिखा होता सिफ्त अहमद तो फिर तो ठीक है, इस पे डिबेट हो सकती थी कि यह सिफ्त है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्मो अहमद, अब वो इससे आगे नहीं था बढ़ रहा। नहीं, बात तो अगर सही है। अगर आप सिफ्तोहू अहमद की डिमांड करते हैं, और बल्कि नहीं, सॉरी, इस्मोहू अहमद की डिमांड करते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले तक उनको किसी भी शख्स ने अहमद कहकर नहीं पुकारा है। बस बात खत्म हुई यहाँ पर। ये कहाँ से साबित करेंगे आमिर नज़ीर भाई? फिर वही बात आ गई, जब मिर्जा साहब कह रहे हैं तो फिर आप अब मिर्जा साहब से फिर बढ़ रहे हैं ना। अब आप अपने फतवे के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है टाक मास्टर साहब। नहीं नहीं, ये आप नासमझी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं, ना समझी की बात तो नहीं है ना। अब मिर्जा साहब कहते हैं मुझे इल्हाम करके बताई गई हैं चीजें। आप या मैं या कोई और बंदा तो ये कह सकता है, उनमें तो गलती पाई जा, मिर्जा साहब पे तो नहीं गलती पाई जा सकती ना। मिर्जा साहब को तो इल्हाम होते थे बकौल आप लोगों के। आपका ये मानना है कि अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होता था, तो जो मिर्जा साहब को बात बताई गई है वो ज्यादा ऑथेंटिक है। और मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम है, ना कि सफात नहीं है। वो तो सिफात का नाम भी नहीं ले रहे। अब बताएं, मिर्जा साहब ठीक है बात कह रहे हैं या टाक मास्टर की बात ज्यादा ठीक अच्छा है? सोहेल भाई, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत था कि ये नाम जो है उनका नहीं था और ना पुकारा गया ना लिखा गया, तो आप फौरन मिर्जा साहब की बात क्यों करते हैं? आप पहले कैसे साबित कर सकते हैं कि उनका नाम नहीं था? कैसे साबित करेंगे? नहीं, ये बारे सबूत आप पर आता है कि आप ये दावा कर क्यों रहे हैं। हमारे ऊपर क्यों आएगा? हमारे पास तो कुरान और हदीस है, हम तो कह रहे हैं नहीं नहीं उनका नाम नहीं, है। आप ये कुरान और हदीस बात की बात है, अल्लाह अकबर। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ सोहेब भाई। आप ये कहते हैं कि उनका पहले ही नाम अहमद था। मैं तो ये ये कह फिर रहा हूँ कि आप ये दावा करते हैं तो बारे सबूत भी आप पर आता है कि आप साबित तो करें। हम तो जो अपना दावा रखते हैं उसकी दलील कुरान और हदीस से देते हैं ना। ओहो, आप अगर इसका कुरान रद्द हदीस करते हैं अभी तो आप उतरा ही कुरान और नहीं है। हदीस से इसका रद्द कुरान करके और दिखा दें हमें। कुरान और हदीस अभी उतरा ही नहीं है, तो आप उसका सबूत दे रहे हैं मुझे। नहीं, हमारे पास जो है ना अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या हदीस है हमारे पास। हमने तो उसी से, मैं अल्लाह ताला बार-बार ये फरमाता है बता कुरान रहा पाक हूँ, में, जब आपके दरमियान कोई तनाजा हो जाता है तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लुटा दो। तो हमने तो लुटाना है, मैं लुटाना किधर है? मैं कुरान और बार हदीस से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं कुरान और सुन्नत से, कुरान और हदीस से पहले की बात कर रहा हूँ, आप फिर वही बात कर देते हैं। कुरान और हदीस से पहले बाइबल से, तो जाहिर बात है अगर ना कहते हैं ना आप ना 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 ना, बाइबल से नहीं। फिर उनकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आपके पास बहुत सारी तारीखें मौजूद हैं, उनके बचपन के हवाले से, उनकी हर चीज के हवाले से, और वहां पर आप मुझे अहमद का नाम दिखा दें उनका। मतलब तारीख की किसी किताब से अगर दिखाएंगे तो आप मान जाएंगे, कुरान हदीस से दिखाएंगे तो नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कुरान हदीस से दिखाएंगे तो मैं मिर्जा नहीं साहब की मानता। किताब से दिखा दे फिर वही बात अच्छा चलो आ ठीक है। जाती। और एक बात मेरे ज़हन में आ गई, मिर्जा साहब को कैसे पता चला कि इस ये जो नाम है ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? फिलहाल तो मुझे ये पूछना कि आपको कैसे पता चला कि उनका नाम शुरू से ही अहमद था?